audit program. मीनिंग डेफिनेशन हो गया था, मीनिंग हो गया था, तो अब हम लोग करना है क्या? एडवांटेज और डिसएडवांटेज इंटरनल उससे पहले ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिट प्रोग्राम क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हाँ कंटेंट लिख लेंगे हम लोग, कंटेंट में क्या क्या होता है जनरली, ठीक है। लिखो द फॉलोइंग्स आर द टॉपिक क्या लिखे? The followings are objective of an audit program. The following are objective of audit program. पहला लिखिए। To provide clear instruction, to the audit assistants, to provide clear instruction to audit assistant, specifying the nature of work, to be performed and fixing the time span of each work, for completion of each work. Second point, to facilitate coordination among various parts of audit works. To facilitate coordination among various parts of audit work. Done? थर्ड लिखो, लिख रहा है सब? क्लास यस सर, लिख रहे हैं सर। वो वाला गाना तुम्हें याद है? सो गया आसमां, सो गई ये जमीन, सुना है तुम लोग? सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता। टिंग टिंग। रिकॉर्डिंग ऑन है। चलो नेक्स्ट लिखो। To ensure uniformity in the performance of audit work. To ensure uniformity in the performance of audit work and to avoid duplication and repetition of work. सर डुप्लीकेशन एंड repetition of work. Next, to attain a fair allocation
a fair allocation of work among audit team. To attend fair allocation of work among audit team. ठीक है, next लिखो, to serve as a guide, to serve as a guide for planning the work in future, to serve as a guide for planning the work in the future. ठीक है, last, to serve as evidence, to serve as evidence in future, to serve as evidence in future, showing the date of completion, showing the date of completion of audit work method of audit work method, procedures, undertaken in completion of audit work, in completion of audit work. In completion of audit work. Done. कितना पॉइंट हो गया बाबू? 6 points. 6, ठीक है, Sir, 6. चलो इसके बाद देखो कंटेंट, पहले एक बार पूरा लिख लेता हूँ फिर समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कंटेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। पहला नेम ऑफ क्लाइंट, Yes, sir. नेम ऑफ द क्लाइंट, दूसरा नेम ऑफ ऑपरेशन बिजनेस ऑफ क्लाइंट। पहला वाला पॉइंट, पहला पॉइंट है नेम ऑफ Name of a द क्लाइंट। नेक्स्ट है नेम ऑफ ऑपरेशंस एंड बिजनेस ऑफ क्लाइंट। नेम ऑफ, हाँ स्मार्ट लग रहा है, जो थोड़ा क्लास भी कर ले। देखो बाल जा रहा है, क्या वाला मेरा नाम क्या है? उत्कर्ष, उत्कर्ष ओम।
वही है ना सर? सर अपने ही दुनिया Yes, में sir. है वो। नहीं दुनिया में ना, यस सर, वो अपने दुनिया में। फर्स्ट क्लास लॉगिन करके छोड़ दिया है। ठीक है, चलो तीसरा लिखो, रिव्यू ऑफ सिस्टम इंटरनल चेक सर नेम ऑफ ऑपरेशन और क्या बोले थे? एंड बिजनेस ऑफ क्लाइंट, एंड बिजनेस ऑफ क्लाइंट। तीसरा लिखो, रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। नेक्स्ट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वर्क। कौन फोन किया उसको? उत्कर्ष को? कौन उत्कर्ष का दोस्त है? डेट ऑफ पीयूष ने किया। डेट ऑफ के बाद सर, डेट ऑफ के बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वर्क, किस दिन ऑडिट हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट वर्क, ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट वर्क। नेक्स्ट, accounting system followed in client's office, accounting system followed in client's office। Next, review reports of previous auditor, review reports of previous auditor। Next, examine the various ledgers, सर रिपोर्ट्स ऑफ previous auditor। Next, examine the various ledger accounts and subsidiary books। Examine the various ledger and subsidiary book। Last, examine the statutory books, examine the statutory books, registers, कौन सा बुक सर? statutory book, statutory, statutory books, registers, profit and loss account and balance sheet। Profit and loss account and balance sheet। Done? चलिए, तो अब ये तो हो गया हम लोग का क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव और कंटेंट। ठीक है, अब एक हम लोग समझते हैं। चलिए, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था सर? टू प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू ऑडिट assistant specifying the nature of work to be performed and fixing the time span of completion of each work। अब ऐसा होता है कि ऑडिट पे एक आदमी अकेले रहता है, उसके साथ बहुत सारा असिस्टेंट भी जाता है लोग। ठीक है, जिसको हम लोग इंटर्न बोलते हैं या आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को क्या होता है, काम डिसाइड किया जाता है पहले। जैसे हम गए तो काम बांटना पड़ेगा सर, बहुत सारा काम होता है। कौन वेरिफिकेशन करेगा, कौन वाउचिंग करेगा, किसको बुक्स ऑफ अकाउंट लाना है, किसको वाउचर्स चेक करना है, किसको बिल्स चेक करना है, तो हम काम बांट दिए। ठीक है,
और सबको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दें कि तुम्हारा काम इतने दिन में खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब आप जब ऑडिट पे जाते हो तो कंपनी या जो क्लाइंट है पहले ही बोलता है कि मैक्सिमम आपको इतना टाइम मिलेगा, इस टाइम में ऑडिट खत्म कर देना आपको, ठीक है। स्टार्ट ऑडिट तो 1 महीना मिलता है, नहीं तो बाकी मतलब जितना जल्दी आप खत्म करिए उन लोगों का काम क्या तो नुकसान होता है, ठीक है। तो जैसा रिक्वायरमेंट होता है क्लाइंट का, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा असिस्टेंट है, जो मेरा आर्टिकल है, उसका हम क्या करते हैं सर, ऑल टाइम फिक्स कर देते हैं कि आपको इतना दिन में काम क्या करना है सर, खत्म कर देना है, ठीक है। और वो रिपोर्ट बना के अपने सीनियर को भेजेगा, ठीक है। चलिए अब देखो दूसरा बात क्या बोल रहा है कि अगर सबको अपना अपना ड्यूटी मालूम है, सबको अपना अपना काम मालूम है, तो फिर वर्क करने में दिक्कत नहीं होगा, किसी को बार बार इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम ये काम करो, तुम वो काम करो, सबको ऑलरेडी से पहले सब पहले से क्या है पता है। दूसरा बात क्या होता है कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेने में आसानी होती है, ठीक है। जैसे मान लो हम उत्सव बोले कि उत्सव वी विल डू द वर्क ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, कि वेदर कंपनी बैलेंस शीट में एसेट्स दिखा रही है उतना कंपनी में एक्चुअल पास है कि नहीं है, ठीक है। अब उस प्रोसेस में समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है सर, देन आई विल कॉल आउट रजत, यू हैव डन दिस पर्टिकुलर वर्क, ठीक है। सो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो यू विल बी हेल्ड रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल, तो तुम क्या होगे, रिस्पॉन्सिबल होगे। क्लियर बात है यहां तक, कोई दिक्कत? नो सर। कौन बोला? नो सर नहीं है। ठीक है, बोला कोई कुछ और बोला क्या? नेक्स्ट है to ensure uniformity in the performance of audit work to avoid duplication and repetition of work। अब मान लो होता क्या है कि सर ऑडिट बहुत लंबा पड़ता है और काम बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एक ही आदमी दो काम को 2 बार कर दे, तो एक तो सर वो टाइम वेस्ट हो गया, रिसोर्स वेस्ट हो गया, क्योंकि उसको कोई आउटपुट निकला नहीं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं सर, ऑडिट प्रोग्राम को हम लोग बना के रखते हैं, ठीक है, ताकि ऐसा कोई इश्यूज क्रिएट ना हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट, टू अटेन अ फेयर एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द ऑडिट टीम। अब कोई ये नहीं बोले कि हमको ज्यादा काम मिल गया, हमको कम काम मिल गया, तुमको कम मिला, तुमको ज्यादा मिला, वो सब काम नहीं सर, सबका काम पहले से क्या होगा, तय हो जाएगा, ठीक है। ओम उत्कर्ष, ओम यस सर। क्लास में है ना उत्कर्ष? हाँ सर क्लास में है। ठीक है चलो, तुम रहता तो अच्छा लगता ना। नेक्स्ट है टू सर्व एज अ गाइड फॉर अप्लाइंग द ऑडिट वर्क इन फ्यूचर। देखो अब एक बार आप ऑडिट प्रोग्राम जैसे मान लो हमने एक स्टैट्यूटरी ऑडिट का, ठीक है, हमको एक स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है, स्टैट ऑडिट करना है सर, और उसको ऑडिट प्रोग्राम बनाए हैं, ठीक है। तो वो ऑडिट हो गया। अब हम जब नेक्स्ट टाइम भी प्रिपेयर करेंगे ना, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम हम प्रिपेयर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हमको उस प्रीवियस वाले से हेल्प मिलेगा कि हम ऐसे कंपनी ऑडिट किए थे, वो कंपनी मान लो इलेक्ट्रिक कंपनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक गुड्स बनाती है। अब नेक्स्ट कंपनी हम लोग और इलेक्ट्रिक कंपनी, तो हमको बहुत हेल्प मिलेगा कि किस ट्रैक पर हमको क्या करना है, काम करना है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ, टू सर्व एज एविडेंस इन फ्यूचर, ठीक है। वही बात हुआ सर कि मेरे पास सारा चीज रिकॉर्डेड है, हम कब कौन सा काम किए, कब नहीं किए, तो अगर कल को कोई मेरे पे क्लेम करता है, ठीक है, या मेरा सीनियर ही बोलता है कि नहीं यू हैव नॉट डन दिस वर्क, तो मेरे पास रिटन एविडेंस होगा, बिकॉज इन दोस केसेस द ओवरऑल थिंग डोज वर्क। आप मुंह से बोलेगा काम नहीं होता है सर, ठीक है, आपको रिटन एविडेंस चाहिए, आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा। तो वो जो आपको ऑडिट प्रोग्राम है कि आप इस डेट पे ये काम किए, ऐसे किए वैसे किए, वो एज ए एविडेंस भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़े हैं सर, वो पढ़े हम लोग कंटेंट ऑफ ऑडिट प्रोग्राम।
कि ऑडिट प्रोग्राम का क्या क्या कंटेंट होगा, ठीक है, क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा सर, हम जिसके पास ऑडिट करने जा रहे हैं उसका नाम होगा, ठीक है, हम किसके पास ऑडिट करने जा रहे हैं। दूसरा क्या होगा सर, तो हम जिसको ऑडिट करने जा रहे हैं वो किस टाइप का बिजनेस करता है, वेदर वो सोल ट्रेड कंपनी है, वो सोल ट्रेड है सर, या पार्टनरशिप है, या वो कंपनी है, बैंक है सर, क्या है। इससे क्या पता चलता है ना कि जैसे इसको हमको नेचर ऑफ बिजनेस पता चलेगा तो हमको ये पता चलेगा कि उस पर कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जैसे मान लो हम टैक्स ऑडिट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो टैक्स में क्या देखेंगे सर, इनकम टैक्स एक्ट की जो बातें हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। अब अगर हम सोल ट्रेड ऑडिट कर रहे हैं तो वहां पर हिंदी लॉ देखेंगे, ठीक है, कि करता है कि नहीं करता है, उसको बोलते हैं सर the one who is the head of the family is known as करता। नाम सुना तुम लोग करता का? यस सर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू फैमिली में लॉ होता है दया भाव और मिताक्षर, जिसमें क्या आता है, करता आता है ना, तो वो चीज है या नहीं है, ठीक है। वेदर वो टैक्स दे रहा है कि नहीं। अब कंपनी है तो कंपनी में क्या होता है सर, फ्लैट रेट चार्ज होता है 30% टैक्स का। अगर आपकी कंपनी और बिजनेस कर रहे हैं तो आप जो भी अर्न कर रहे हो उसका 30% आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ता है फ्लैट, ठीक है। तो वो सब चीजें वहां बदलती है। दूसरा क्या है, रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। अब इंटरनल चेक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे, सबको पता है ना। तो क्या वहां पे प्रॉपर इंटरनल चेक है कि नहीं, मतलब एम्प्लॉयज के काम पे ध्यान दिया जाता है कि नहीं, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के काम को चेक कर रहा है कि नहीं, वो चीज देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वर्क, ठीक है। हम किस दिन काम स्टार्ट किए वो भी उसमें लिखना होगा। क्यों, ताकि ये जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी बना रहेगा कि हम उस ऑडिट को कितने दिन में खत्म किए हैं सर, ठीक है। दैट्स व्हाई कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट वर्क इज नेसेसरी, ठीक है। आप जिस दिन कर रहे हो उस दिन लिखना जरूरी है। नेक्स्ट लिखो, ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट वर्क। नेक्स्ट क्या था, ड्यूरेशन ऑफ ऑडिट वर्क, ठीक है, कि वो ऑडिट कितने दिन का होगा। जैसे मान लो ड्यूरेशन तय होता है पहले ही, ठीक है, हम आपके पास 1 मंथ का ऑडिट करेंगे या 20 दिन का ऑडिट करेंगे, ठीक है, तो वो एक्चुअल में डिफर कर सकता है, हो सके जब हम काम करने जाए तो काम ज्यादा हो, इंटरनल चेक उतना अच्छा ना हो, ठीक है, जिसके कारण उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ जाए, ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट क्या था आपका, सर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलोड इन क्लाइंट्स ऑफिस। अब ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है सर, क्योंकि जैसे ही आप किसी के ऑडिट करने जाते हो तो अब क्या है सर, टोटल काम कंप्यूटराइज हो गया, ठीक है। पहले की तरह सब कोई फाइल मेंटेन नहीं करता है सर, ठीक है। सारा काम मेल पे होता है, एक्सेल शीट पे होता है, या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है। तो अब ये बहुत जरूरी कि जो ऑडिटर है ना उसको आईटी का नॉलेज हो, ठीक है, उसको आईटी का नॉलेज होना चाहिए ताकि वो थोड़ा बहुत अकाउंट्स का ऊपर नीचे देख सके। तो क्या बता रहे थे बाबू, सर अकाउंटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है तो क्या होता है कि जो मतलब जो ऑडिटर जा रहा है, ठीक है, उसको वहां पे ध्यान देना है सर कि कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अब सारा काम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक। तो अगर थोड़ा भी गड़बड़ होगा, अगर उसको नॉलेज नहीं तो दिक्कत हो सकता है, बिकॉज नाउअडेज बहुत ही कम अकाउंट्स मतलब मैनुअल फॉर्म मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे पेमेंट ही है, वो चेक से हो गया, बैंक से हो गया, तो भाई देखना पड़ेगा एनईएफटी ट्रांजैक्शन क्या है या नहीं, वो चीज चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या होगा सर, नेक्स्ट क्या था बताओ, रिव्यू रिपोर्ट्स ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। अब उसके पहले भी उस कंपनी का या उस बिजनेस का ऑडिट हुआ होगा ना, ठीक है। तो अब जब ऑडिट हुआ होगा, ठीक है, तो उसमें क्या रिपोर्ट आया है, वो ऑडिटिंग कैसा था, वो जानना भी एक ऑडिटर के लिए जरूरी है, क्योंकि वो उस बेसिस पर ऑडिट कंडक्ट करता है, ठीक है। चलो अब तुम्हें पहले इसके एक बार पढ़ लो।